Miracles will only meet your daily needs. चमत्कार सिर्फ आपकी आज की जरूरत को पूरा कर सकता है। But it is your Father's desire to take you a land of abundance where milk and honey flows in abundance. लेकिन ये आपकी पिता की इच्छा है कि वो आपको उस देश में ले जाए जहां पर दूध और शहद की धाराएं बहुतायत से बहती हैं। Are you guys with me? मेरे साथ हैं। A lawgiver can bring you out of Egypt but cannot make you enter the promised land. एक व्यवस्था देने वाला व्यक्ति आपको मिस्र से तो बाहर निकाल लाएगा पर वायदे के देश में नहीं ले जा सकता है। That's why what happens with people is now they are out of the world. They are no longer in the world. They believe in Jesus Christ, but their life is as messed up as any other person. इसीलिए अब लोगों के साथ क्या होता है, वो दुनिया से तो बाहर आ गए, चर्च पे तो पहुंच गए हैं, पर उनकी जिंदगी उतनी ही बदतर है जितनी दुनिया में लोगों की है। Heavenly Father, we thank you for your word. स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। We thank you for your mighty Holy Spirit. आपकी शक्तिशाली पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। Let the word of God come forth in power and in revelation. परमेश्वर का वचन सामर्थ्य और प्रकाशन के साथ उतरे। Let every bondages of legalism be broken today in Jesus' name. कानूनी सोच की हर एक बंधन आज टूट जाए यीशु के नाम में। Let your people be released from every religious spirit in the name of Jesus. आपके लोग हर एक धर्म की आत्मा से आज छुटकारा पाएंगे यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Amen. Hallelujah. You know, last Sunday we learned about how glorious the gospel really is. पिछले रविवार हमने सीखा था कि सच में सुसमाचार कितना महिमा से भरा हुआ है। But the sad part is, पर दुख की बात यह है, majority of Christians are a part of a schizophrenic Christianity. ज्यादातर मसीह लोग एक ऐसी मसीहत का हिस्सा है जिसमें भुलक्कड़पन की बीमारी है। They are not sure who the Father is. उनको पक्का नहीं पता कि पिता है कौन। So they believe in a God who heals, वो एक ऐसे परमेश्वर को मानते हैं जो चंगा करता है, but who is the same one who gives the sickness. लेकिन वो वही है जो बीमारी भी देता है। So with one hand he is healing you, तो एक हाथ से वो आपको चंगाई but with देता है, another hand he gives you पर sickness. दूसरे हाथ से वो आपको बीमारी दे रहा है। With one hand he delivers you out of your problems, एक से वो आपकी समस्या से आपको but छुटकारा with other देगा, hand he puts you in पर problems. दूसरे हाथ से समस्या में डालता है। That's the problem. यही दिक्कत है। They believe in a God who is good, but also in a God who puts you in a pit. वो एक ऐसे परमेश्वर को मानते हैं जो भला भी है, लेकिन वही परमेश्वर गड्ढे में भी धकेलता है। They believe, yes, God is good, Pastor, God is good. As long as I am behaving good, as long as my performance is good, God is good. वो मानते हैं हाँ परमेश्वर भला है, पास्टर परमेश्वर भला है, जब तक मेरे काम मेरे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तब तक वो भला है। But if I did anything wrong, लेकिन अगर मैंने कोई भी गलती कर दी, then he's going to send his punishment. तो वो अपना दंड भेजेगा मेरी जिंदगी He's पे। the one who will send accidents. He's the one who will send sicknesses to teach us a lesson that he's a holy God. वही एक्सीडेंट्स भेजेगा जिंदगी में और बीमारियां भेजेगा सिखाने के लिए कि वो एक परमेश्वर है जो पवित्र है। That is a perverted gospel. Did you hear what I just said? That is no gospel at all. ये एक मिलावटी और दूषित समाचार है, ये सुसमाचार है ही नहीं। That kind of believing does not glorify the Father, does not glorify the Son, does not glorify the Holy Spirit. इस तरह से परमेश्वर को मानना ना तो पिता की महिमा करता है, ना पुत्र की, और ना ही पवित्र आत्मा की महिमा करता है। Because there is less revelation of what the gospel really is. That's why people even in the new covenant are perishing. क्योंकि इतना थोड़ा प्रकाशन है कलीसिया में कि सुसमाचार है क्या, इसीलिए वो लोग जो कलीसिया में आते हैं वो भी नाश हो रहे हैं गलत समाचार की वजह से। Because all their life they've heard a perverted gospel. क्योंकि जिंदगी भर उन्होंने मिलावटी और भ्रष्ट समाचार सुना है। The Bible says, God says, my people perish because of the lack of revelation knowledge. परमेश्वर अपने वचन में कहता है मेरे लोग मेरे प्रकाशन ज्ञान की घटी उसकी कमी के कारण नाश होते हैं। And that's why much of the church is still living in wilderness. इसीलिए ज्यादातर कलीसिया अभी भी मरुस्थल में जी रही है। That's why they say, oh, we are in wilderness, we are in wilderness. Yes. हम तो मरुस्थल में, हम तो उस मरुस्थल में। हाँ, Day before yesterday, God told me something and it completely blew my mind. परसों प्रभु ने मुझसे कुछ ऐसा कहा और मैं हैरान हो गया वो सुन करके। Are you ready? तैयार हो सुनने के लिए?
I've never heard anybody talk about this, but that's so powerful. मैंने कभी किसी को उसके बारे में बोलते हुए नहीं सुना था, लेकिन बहुत शक्तिशाली। When Israelites were in bondage, जब इजरायली लोग बंधन में थे, they cried out to God. वो परमेश्वर को रोकर बुलाने लगे, पुकारने लगे। God raised Moses. परमेश्वर ने मूसा को उठा के खड़ा किया, And God brought them out of Egypt through Moses. और परमेश्वर उनको मिस्र से निकालकर मूसा के द्वारा लेकर के आया। Now hear this. Moses brought the people out of Egypt, but he could not bring the people in the promised land. अब इस बात को सुनिए, मूसा लोगों को मिस्र से तो बाहर निकाल ले आया, लेकिन वायदे के देश में नहीं ले जा सका। Preaching that God is an angry God. God, if you do not live right, He's gonna kill you, He's gonna curse you. That kind of preaching can bring you out of the world, but it will never take you to the promised land. ये प्रचार करना कि परमेश्वर एक क्रोध से भरा हुआ परमेश्वर है, वो तुम्हें सिखाने के लिए ताड़ना देगा, ये मिस्र से तो बाहर ले आएगा, दुनिया से तो आपको छुड़ा लाएगा, लेकिन वायदे के देश तक नहीं पहुंचाएगा। Hear this. सुनिए, Through law, you can never inherit the promises of God. क्योंकि व्यवस्था के द्वारा आप कभी भी परमेश्वर के वायदों के हकदार, उसके हिस्सा नहीं ले सकते उसमें। Why do you think the person who God gave law was given through Moses, right? आपको क्यों लगता है कि जिस व्यक्ति के द्वारा व्यवस्था दी गई, If he was not able to enter the promised land, how do you think you can enter the promised land with law? जब मूसा जिसको व्यवस्था दी गई थी वो वायदे के देश में प्रवेश नहीं कर पाया, तो आपको क्यों लगता है कि आप कर सकते हैं व्यवस्था के द्वारा? Think about this. कल्पना करें, The one who the law was given through Moses, व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई थी, he didn't do adultery. उसने व्यभिचार नहीं किया था, He wasn't drunkard. वो शराबी नहीं था, He disobeyed God once. उसने एक बारी परमेश्वर की बात नहीं मानी। Because according to the law, if you disobey once, you have broken all the commandment. क्योंकि व्यवस्था के अनुसार अगर आपने एक वाचा तोड़ दी, एक वादा तोड़ दिया व्यवस्था का, तो सारी व्यवस्था को तोड़ दिया है। And God said, no, और परमेश्वर ने कहा आप नहीं, you cannot enter. तुम प्रवेश नहीं कर सकते हो। Are you with me? मेरे साथ हो। What happened when Moses brought the church out of wilderness, out of Egypt? क्या हुआ जब मूसा चर्च को मिस्र से बाहर ले आया? What was happening in the wilderness? क्या हो रहा था उस जंगल में, उस There were miracles, चमत्कार हो रहे थे, pillar of fire, pillar of cloud. आग का खंबा, बादल का खंबा था। That's where the church is right now. कलीसिया भी वहां पर है, They are seeing miracles, वो चमत्कार देख रहे हैं, fire, आग देख रहे हैं, all of that. I mean, like सब कुछ preachers who preach wrath and hellfire, you will see healings in their churches. प्रचारक जो नरक का प्रचार करते हैं, वो उनकी मीटिंग में भी आपको चमत्कार होते हुए दिख जाएंगे। But the people लेकिन will जो never लोग, possess the promises that are for them. वो जो लोग हैं वो कभी भी उन वायदों पर कब्जा नहीं कर पाएंगे जो परमेश्वर ने उनके लिए रखे हैं। Miracles will only meet your daily needs. चमत्कार सिर्फ आपकी आज की जरूरत को पूरा कर सकता है। But it is your Father's desire to take you a land of abundance where milk and honey flows in abundance. लेकिन ये आपकी पिता की इच्छा है कि वो आपको उस देश में ले जाए जहां पर दूध और शहद की धाराएं बहुतायत से बहती हैं। Are you guys with me? मेरे साथ हैं। A lawgiver can bring you out of Egypt but cannot make you enter the promised land. एक व्यवस्था देने वाला व्यक्ति आपको मिस्र से तो बाहर निकाल लाएगा, पर वायदे के देश में नहीं ले जा सकता है। That's why what happens with people is now they are out of the world. They are no longer in the world. They believe in Jesus Christ, but their life is as messed up as any other person. इसीलिए अब लोगों के साथ क्या होता है, वो दुनिया से तो बाहर आ गए, चर्च पे तो पहुंच गए हैं, पर उनकी जिंदगी उतनी ही बदतर है जितनी दुनिया में लोगों की है। They are in wilderness वो अभी भी जंगल for में years. सालों से। Moses could never bring them in the promised land. That's why the role was for Joshua. मूसा उनको वायदे के देश में नहीं ले आ सका, इसीलिए वो काम यहोशू को सौंपा गया। And Joshua in Hebrew means Yehoshua, from which we get the word Jesus. और यहोशू जो इब्रानी में शब्द है यहोशुआ, जिससे हमें यीशु शब्द मिलता है। Are you guys with me? मेरे साथ हो।
Because majority still are trying to establish their righteousness through the law. क्योंकि बहुत से लोग अभी भी अपनी धार्मिकता अपने कामों के अपने व्यवस्था के बलबूते करने के लगे हुए हैं. They have mixed law and grace together. उन्होंने अनुग्रह और व्यवस्था को मिलावट कर दी So neither they are on the law side, neither they are on the grace side. तो ना तो वो व्यवस्था की तरफ ठहरे ना ही वो अनुग्रह की तरफ This is a बचे. confused Christianity, ये ऐसी परेशान मसीहत है, कंफ्यूज मसीहत है, schizophrenic Christianity. जिसमें भुलक्कड़पन भरा हुआ है. They don't know उनको नहीं if पता, anything wrong is happening with me. Is it God who is sending it or it is devil? उनको इतना तक नहीं पता अगर उनकी जिंदगी में कुछ गलत हो रहा है तो वो परमेश्वर भेज रहा है या शैतान भेज रहा है. Let's see John 1:17. यूहन्ना 1:17 देखते हैं. For the law was given through Moses, क्योंकि व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई थी, but grace and truth came through Jesus Christ. लेकिन अनुग्रह और सत्य यीशु मसीह के द्वारा आए. Amen. And this word came, और जो ये आए या पहुंचे शब्द है, it is a Greek word ginomai, which means to appear or to come into being. और ये शब्द गिनोमाय है यूनानी का, जिसका मतलब है प्रकट होना या वजूद में आ जाना. So grace, when came in the form of person, that is Jesus Christ. जब अनुग्रह एक व्यक्ति के रूप में आया तो वो यीशु मसीह है. Are you guys with me? मेरे साथ हो. The day you know the gospel, जिस दिन आपको सुसमाचार पता लग गया, you will possess freely what your father has given to you for free. आप आजादी से कब्जा कर लोगे जो आपके पिता ने आपको मुफ्त में दे दिया. You know, so many preachers are putting conditions for the blessing that the Lord has given for free. आप जानते हैं बहुत से प्रचारक शर्तें लागू कर रहे हैं उन वायदों पर जो प्रभु ने मुफ्त में दे दिए. Jesus never told any sick person, यीशु ने कभी किसी बीमार व्यक्ति से नहीं "Oh, कहा, I cannot heal you now. ओ मैं अभी तुझे चंगा नहीं कर You सकता, haven't fasted enough. तूने अभी उतना उपवास नहीं किया है, You need to fast more, then you'll be healed. तुझे और उपवास करना होगा तब तो ठीक होगा, Oh, you haven't prayed enough. और तूने इतनी प्रार्थना नहीं की है अभी तक, Oh, you are not living in holiness right और तू now." पवित्रता में नहीं जी रहा अभी. He healed multitudes. उसने भीड़ों को चंगा कर दिया. भीड़ Not once did he ever say, "I will not heal you because of your sin." एक बार भी उसने ऐसा नहीं कहा तेरे पाप की वजह से तुझे ठीक नहीं करूंगा मैं. It's a gift. ये गिफ्ट है. Don't try to earn what God has given as a gift. जो परमेश्वर ने गिफ्ट की तरह दिया है उसको कमाने की कोशिश मत करो. You know, it breaks my heart when some people would come and they will say, "Oh, pastor, this preacher told me that my dad died because it's a judgment of God. My brother is autistic because it's a judgment of God." I was like, that's a perverted gospel. मेरा दिल टूटता है जब लोग ऐसी बातें आगे कहते हैं कि एक प्रचारक ने मुझसे कहा था कि आपके पापा की मृत्यु इसलिए क्योंकि परमेश्वर का दंड उन पे, परमेश्वर का न्याय उन पे पड़ा. आपका भाई ऑटिस्टिक इसलिए क्योंकि परमेश्वर का दंड उसका न्याय है. ये एक झूठा समाचार है, सुसमाचार नहीं है. Read the Bible, बाइबल को पढ़ लो, all the gospels. सारी पत्रियां पढ़ लो. If you ever find Jesus denying anyone's healing because they were not worthy for it, अगर आप कहीं भी पाते हो कि यीशु मसीह ने किसी को चंगाई देने से मना कर दिया क्योंकि वो उसके लायक नहीं था, because nobody is worthy. क्योंकि कोई भी लायक नहीं है. Even Moses wasn't worthy to enter in his own obedience. मूसा भी इस लायक नहीं कि अपनी आज्ञाकारिता के भरोसे बलबूते वो प्रवेश कर सकता था. That's why God said, "No, you have disobeyed me once, you are not entering in." इसीलिए परमेश्वर ने कहा नहीं, तूने मेरी बात को इनकार कर दिया, एक बार अब तू प्रवेश नहीं What करेगा. was God trying to tell us? परमेश्वर हमें क्या कहना चाह रहा था? There is a revelation behind why Moses couldn't enter. इसमें प्रकाशन है कि मूसा क्यों प्रवेश नहीं कर सका. God wanted to tell us that through law you can never inherit the promises. परमेश्वर हमें ये संदेश देना चाहता था कि व्यवस्था के कामों के बलबूते आप कभी भी परमेश्वर के वादों पर कब्जा नहीं कर सकते हो. There are 8,000 promises in the Bible. 8,000 वायदे हैं बाइबल में. More than that. उससे ज्यादा ही है. About healing, चंगाई के, about prosperity, समृद्धि के, about deliverance, छुटकारे about के, promotion, उन्नति about के, peace, शांति about के, shalom. शालोम के. And people get saved. And then when people get saved, then they think,
now I'm going to earn these promises. जब लोग उद्धार पा लेते हैं तो वो सोचते हैं अब मैं कमा लूंगा ये सारे वादे परमेश्वर से काम No, कर। you don't earn. नहीं, आप You कमाते नहीं enter in by faith. आप कमाते नहीं है, आप विश्वास से उसमें प्रवेश करते हैं। Jesus earned it for you. यीशु ने आपके लिए कमा लिए उनको। Jesus paid the cost on your behalf. यीशु ने आपके बदले दाम चुका दिया उनका। If you will try to pay the cost, you will be outside of the promises. You cannot enter in with your righteousness. अगर आप दाम चुकाने की कोशिश करोगे तो वादों से बाहर खड़े रहोगे, क्योंकि अपने कामों के बलबूते उनमें प्रवेश नहीं हो सकता। What do you need to do? क्या करना होगा आपको? You need to believe in what Christ Jesus has already done for you. आपको उस बात पर विश्वास करना होगा जो मसीह यीशु ने आपके लिए पहले ही कर दिया है। Are you guys with me? मेरे साथ हो? Hallelujah. You know, the law was never given to make us holy and righteous. व्यवस्था कभी इसलिए दी ही नहीं गई थी कि हम धर्मी और पवित्र हो सकें। That's what many Christians have still not got it. अभी भी बहुत से मसीहियों को समझ में नहीं आया। They think I'm better than somebody else. I'm more righteous than this person because look at his life. I fast more, I pray more, I give more. उनको लगता है मेरा जीवन किसी और से बेहतर है क्योंकि उसकी जिंदगी को देखो, मैं ज्यादा उपवास करता हूँ, ज्यादा देता हूँ, कलीसिया में ज्यादा ये करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ।